and innovation. So far, I have completed my BTech in computer science, followed by my master's in technology from IIT Kharagpur in the domain of human resource development and management. And then I pursued my PhD from IIT Kanpur in the area of industrial engineering and management, with special focus to the alignment of organization and information technology as well as a part of my research study. I'm here since last 10 years and serving in the domain, as I stated, in the field of technology management and innovation. So this session is particularly dedicated to the understanding of the startups working on the technology domain to excel their journey and dealing with the technology, and that is core strategic orientation of the success of the startup. So this topic has been chosen, the technological readiness level of the organization towards commercializing the business idea to marketable product as well. So I would be using both the language, Hindi and English, for the conversation as for the ease of the participants, right? So I'm sure that you all must be belonging to Hindi Bhashi area. I think it would be more communicative and it would be more participative if you would be comfortable with the communication barriers. Okay? So before proceeding to the topic, I would like to understand your your silly background. I'm sure that I have been told that here we have heterogeneous gentry participating from academic, participating as a startup, and I think some of you may be belonging to the research domain also, right? So, how many of you are basically running their own venture? Right. Good name, sir. डॉक्टर राघवेंद्र द्विवेदी डॉक्टर अरविंद द्विवेदी. राघवेंद्र राघवेंद्र द्विवेदी. तो द्विवेदी जी कहाँ पे आपका है ये स्टार्टअप, क्या डोमेन है? डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर ओके. रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. Okay. So, is it based on some innovative idea or is it based on a traditional thought? अभी तो हाइब्रिड है. हाइब्रिड में तो एक ट्रेडिशनल हो गया, तो उसमें इनोवेशन क्या है? हाँ, इनोवेशन ऐसे एक्चुअली नहीं कि वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे थे, मैं उसको यूज कर रहा हूँ. ओके. हाँ, टेक्नोलॉजी अभी अच्छा मतलब आपके पास कोई अपना खुद का इनोवेटिव प्रोडक्ट या इनोवेटिव ओरिएंटेशन इस बात के लिए नहीं कि आप कुछ बना करके मार्केट में नया देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है अभी, बट यू आर ऑन दैट वेंचर. उसमें चल भी रहा है. फॉर एग्जांपल अभी तक आपने ना चॉकलेट्स तो फ्लेवर्स वाले बहुत सारे खाए हैं. हाँ. अभी फ्लेवर्ड जो है चॉकलेट जैसा ही हम फ्लेवर्ड जो है जैगरी को प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके. तो उसमें हम आगे बढ़ गए. उसमें चॉकलेट फ्लेवर है बच्चों के लिए, सॉफ्ट फ्लेवर है नॉर्मली. परफेक्टली ऑलराइट. तो अगेन दिस इज बेसिकली फूड प्रोसेस इनोवेशन, राइट? क्योंकि हमारा अपना फार्म है तो इसलिए हमें वो भी नहीं कि हमें कहीं से लेना देना है, तो उसमें हम अपने हिसाब से उसका प्रोडक्शन करते हैं. अच्छा. So, coming from this idea to at this present stage, how much time you took and what challenges you basically perceived during the transition from idea to final this flavor development? कैसे किया? फर्स्ट तो क्या है कि आई हैडंट आइडिया बिकॉज़ आई एम अ प्रोफेसर. मैं सिंस 2000 टीचिंग. ओके. तो मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ टाइम क्या है कि जैगरी इज मोर हेल्दी टू आवर बॉडी इन कंपैरिजन टू द अदर थिंग्स. सो दैट्स व्हाई इट केम इन माइंड. लेकिन मेरा चूंकि वो डोमेन नहीं था तो इसलिए बड़ा मुश्किल था शुरू में सब चीजें करना, और फिर बाकी लोगों का रेजिस्टेंस भी था कि तुम क्या फालतू के काम कर रहे हो. ऑलराइट. तो लेकिन फिर उसमें मैं अपना एक फ्रेंड है उसके संग लेके उसको शुरुआत किया, क्योंकि मेरा नहीं था. लेकिन वो चूंकि जो उसको क्रशर बोलते हैं जो गुड़ बनाते हैं उनसे जुड़े हुए थे, तो उनसे फिर मैंने टाई अप करके मैंने शुरुआत किया. ऑलराइट. Perfectly alright. So how many flavor right now you are producing? 4. 4 flavor. From when you are producing this flavor? कब से ये आप इस फ्लेवर्ड के जैगरी वाले प्रोडक्ट दे रहे हैं बाजार में? अभी ये हमने 2 साल से शुरू किया है. अच्छा. तो पहले तो अभी तो देखा जाए तो ट्रायल बेसिस पे अभी कुछ भी सक्सेस मिल रहा है तो उसको धीरे धीरे हम आगे ले जा रहे हैं. अभी कुछ प्रॉब्लम्स भी हमारे संग, जैसे कि हम इस सीजन में तो हमारे लिए आसान होता है. हाँ. लेकिन उसके बाद क्या हमारे को ना अभी कोई ऐसा बाइंडिंग एजेंट नहीं मिल रहा है जो उसकी शेल्फ लाइफ उसमें बढ़ा दे गर्मी में.
technically this challenge is basically happening at the board level. हाँ Raw material की storage plus finished product की life cycle दोनों ही जगह issue है. तो विंटर्स में तो हमारे लिए इजी है क्योंकि शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और वो मेल्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ये अप्रैल एंड ऑनवर्ड्स होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो उसको लेके मेरा 2 लोगों से बात चल रहा है. अप्रैल में या फिर मई में या फिर अगस्त में या फिर अक्टूबर में रॉ मटेरियल के क्या स्टेटस है, मिलता है कि नहीं मिलता है, और मिलता है तो आप कैसे उसको प्रयोग करते हैं? नहीं, रॉ मटेरियल तो सर देखिए ये हमें मिलता है अप्रैल एंड तक, मई तक भी मिल जाता है, लेकिन मुद्दा ये है ना कि हमारा चूंकि उसका शेल्फ लाइफ नहीं बचता है तो उसको हम आगे तक कैरी नहीं करा पा रहे हैं फिलहाल. तो हमारा क्या है कि हम जो है बनाते हैं, हम वो बनाना शुरू करते हैं आपका अक्टूबर से, सितंबर अक्टूबर से, जब थोड़ा सा विंटर शुरू हो जाता है, उसके बाद से लेके फिर हमें अप्रैल तक खत्म ही करना होता है. Understood. So this is journey of Dr. Dwivedi on the path of entrepreneurial success from idea to product marketing, and since last 2 years he is basically developing this particular jaggery based flavored chocolate to the market. Probably he may also be facing challenges at different level, from idea to its conceptualization, from लीवर का conceptualization. बहुत बड़ा इशू होता है इसमें, लीवर नहीं होता वो, क्योंकि उनको पुराना ट्रेडिशनल मेथड है, वो नए मेथड को अडॉप्ट नहीं करना चाहते. तो जो हम क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं उसके लिए सबसे बड़ा इशू है कि हमारा उसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा है, तो लीवर भाग जाता है, वो टिकना पसंद नहीं करता है. राइट. वो एक बड़ा इशू है. उसमें राउंड द ईयर क्या एम्प्लॉयमेंट अभी एक चैलेंज है? यस, हो सकता है. सीजनल है तो अभी Seasonal, obviously. So this is basically a thought or food to this concept which we are going to discuss. What kind of challenges we face from starting to end up to the market level. पैकेजिंग का भी इशू है. Absolutely. N number of issues would be there. So at least you are in 7th stage of the commercialization of your idea in the form of product and process to the market, and before that you have faced already many number of issues, from conceptualizing the idea, finalizing the idea, working on the idea, developing a concept in the form of proof of concept. Then once proof of concept is ready, then how to develop minimum value product, MPV. Then once minimum value product is ready, then you would be thinking to at least showcase this thing to your end customers. So once you will get feedback from that end customer, then you would be trying to rectify that what kind of based on the feedback to your product. Then again, after you will go to iterative process of refining your product with some add-ons, with some market demand. Then again, you would be submitting it to the market to get feedback. So this is continuous process. Simultaneously, you would be expanding in the market based on different marketing strategy, different approaches, right? And ultimately, at the end, it is big question that how can you say that the startup is matured? This is a big challenge to say. So all the company throughout the globe, if you will look at that, and you will say that okay, this startup is matured. Probably every company is bringing new innovation. So this is this is basically the entrepreneurial journey, which in some through based on certain significant variables, significant measures, significant observation, significant direction, significant field of verticals. You would say that yes, the startup is mature, but this startup journey will consistently continue for longer period, say thousands up to thousands of years, right? One question I would like to ask: which one is the oldest university of this world, which is still existing and excelling? Probably this would be a great question, a great challenge to you to respond. But there are many universities which are sustaining and continuously putting their effort towards bringing novelty and excellence in academics and research, and existing since last more than 1,000 years. Still, I think who visited Columbus or Vasco da Gama visited to India? Who visited? कोलंबस तो रास्ता भूल गया था, फिर बाद में वास्को डी गामा ही आया था, है ना? तो वास्को डी गामा was a researcher of Roman University. हाँ. और रोमन यूनिवर्सिटी वहां से टमाटर लेके आया यहाँ पे.
ठीक है, इंडिया में टमाटर, जो टमाटर इंडिया का फसल नहीं है, वहां से आया है। ऐसे बहुत सारी चीजें, जब रिसर्चर वहां से यहाँ आए हैं विजिट करने के लिए, आज के दिन में उसको प्राइड दिया जाता है कि वास्को डी गामा हैज आइडेंटिफाइड दी भारत। बट क्या भारत उसके एग्जिस्ट नहीं करता था? सवाल ये उठता है, आपकी बात से एग्री करता हूँ, इसीलिए जैसे कई बार लोग कहते हैं सब ये चीज ऐसे, तो आप देखें लोग कहते हैं गन्ना भी हमारे यहाँ नहीं था। एग्जैक्टली। लेकिन मैं आप मुझे एक बात आई है, हमारी जो बुक्स है बहुत पुरानी है। हाँ, लोग हमें सोना चांदी हीरे देके तो हमसे नमक लेके जाते, उन्हें नमक की तमीज भी नहीं थी। हाँ, मीठा भी हमारे यहाँ अगर नहीं होता तो बिना मीठे के तो हमारे कोई काम ही नहीं चलता। बताइए, हर जगह पे मीठा चलता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे यहाँ गन्ना नहीं था और हम मिठाई बना रहे थे? स्टोरी का कंट्रोवर्सीज इतनी ज्यादा है। कंट्रोवर्सी नहीं है, ये रियलाइजेशन की बात है। मैं सिंपल इसका जो फर्स्ट स्टेप है ना, आइडिया का सोर्स कहां पे है, हम उस जगह पे जाना चाहते हैं। Being human, we simply perceive that these are the challenges and we always try to solve that challenges, and in modern language we say that yes, this is entrepreneurship, because whatever challenges you are going to solve, it may either for the society or for the individual, but certainly profit is attached with that. Once profit would be attached with that, then definitely it would be perceived and it would be nomenclated as an entrepreneurship journey. ठीक है, तो जो समस्या है अभी हिंदुस्तान में पिछले, जहां पे कम से कम 8 या 10,000 या और पुराना इतिहास बहुत एस्टैब्लिश्ड है इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, जहां पे सोर्स ऑफ बहुत सारी आइडियाज है जिसके सोल्यूशन बहुत पहले से दिए हुए, हमारा ध्यान आज के दिन में नहीं जा रहा है। ठीक है, और उन लिटरेचर्स को भी पढ़ें तो आइडिया का सोर्स बन सकता है। Exactly. This is one. The another thing is, I'm trying to put some statistics on the part of GDP and contribution of this gross domestic product of India into the world. This is again very significant. Gradually, this GDP contribution at the level of world economy is basically reducing up to 17, up to I would say सन 70 तक, है ना, जहां पे ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, है ना, जब सेल्फ डिपेंडेंस की बातें चलने लगी तब हम वहां से फिर से जीडीपी को टेकअप करने की कोशिश की। उसके पहले क्या हुआ, हमेशा जीडीपी यहाँ का रिड्यूस होता रहा। जीडीपी का एनकाउंटर जो दूसरा पहलू है कि रुपए वर्सेस डॉलर, जो स्टैंडर्ड बार्कलेस सिस्टम है ग्लोबल इकोनॉमी का, डॉलर, उसके मुकाबले कभी रुपया ज्यादा हुआ करता था। मुश्किल से सन 70 से 150 साल पहले चले आइए, 1857 की क्रांति के पहले भारत के जीडीपी का, भारत का जो ग्रॉस एक्सपोर्ट था, दैट वाज अराउंड 30% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। नाउ इट हैज कम डाउन इन द नंबर इन 2 digits or say up to some time ये सिंगल डिजिट में भी हो गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पे हमारा फॉर्मल बिजनेस के तौर पे स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जो हमारा इकोसिस्टम और इकोनॉमिक इकोसिस्टम था, वो क्या विलेज हुआ करता। उस विलेज में इतनी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी थी कि वो घर भी बनाते थे तो गर्मी के लिए अच्छा काम करता था, जाड़े के लिए अच्छा काम करता था। एक गांव में ही छोटे छोटे सेक्टर्स बने हुए थे, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई नाई का काम कर रहा है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई कपड़े सिलने का काम कर रहा है, कोई हल बनाने का काम कर रहा है, कोई खाल बनाने का काम कर रहा है। ऐसे पूरा का पूरा गांव अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल था। एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हुआ करती, जिसको कोस में लोग मेजर करते थे। ठीक है, so in this country where we are residing, we are talking about the excellent ideas, how to filter it. No, we have to simply incorporate our oldest thought with the modern technology and modern practices. Simply we have to transform the philosophy of sustainability, and probably we would be able to take up again the contribution of MSMEs into the global GDP. ठीक है, ये मेरा सीधे फोकस है। तो हमने अभी डिस्कशन किस बात के लिए किया कि हमारा सोर्स ऑफ आइडिया क्या होगा और हमारा अप्रोच क्या होगा। तो ये दोनों चीजें जहां पे जिसको नहीं मिल पा रही है, एक बार अपने पुराने इतिहास को देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप की हिस्ट्री को, इकोनॉमिक हिस्ट्री को, और वहां से अपने, अच्छा वो इतिहास केवल साल 1.5 साल का ना देखे, सॉरी 100-150 साल का ना देखे, थोड़ी सी और पहले जाके देखे। एक एग्जांपल आई वुड लाइक टू कोट एट दिस जंक्चर, around 1750 के आसपास, when it was the time of degradation of the Mughal Sultanate and rising of the
मराठा सल्तनत, उस समय एक स्वराज का कंसेप्ट आया। स्वराज, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन पावर, इफेक्टिव मैन पावर, ठीक है। तो ये बीइंग एंटरप्रेन्योर हमें सोचना पड़ेगा, मैं उसी का एग्जांपल देने जा रहा हूं। तो उसमें क्या हुआ कि शिवाजी महाराज जब अपनी पूरी सेना का सृजन करते थे तो उसमें एक बरसात का टाइम ऐसा आता था जिसमें किसी की सेना लड़ नहीं सकती थी, चाहे वो अपोनेंट की हो चाहे फॉरवर्ड जिसकी मतलब जो होस्ट की सेना हो, ठीक है। उसमें क्या किया उन्होंने कि सेना की जितने भी सेना के सिपाही थे सबको उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया एग्रीकल्चर की ओर, या फिर जो उनकी स्किल्स हुआ करती थी उसकी ओर। उसमें क्या करते थे, कभी जैसे अब एग्रीकल्चर की ओर चले गए तो डिपेंडेंट उनकी एग्रीकल्चर पे हो गए, दूसरी सेनाएं भी ऐसे ही उसको फेस करती रही होंगी, है ना। तो अपनी इन्होंने मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए जो मॉडल अपनाया उसमें ये क्या किया कि सिपाहियों को किसी डिजास्टर से मीट आउट करना है, किसी और भी दैवीय आपदा से मीट आउट करना है जिसको एक ह्यूमन एनकाउंटर नहीं कर सकता, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, जो टैक्सेशन सिस्टम था उसको लेवी के फॉर्म में देना शुरू किया। लेवी के फॉर्म में देने का तरीका ये था कि जैसे किसी का नुकसान हल का हुआ है या बैल का हुआ है या फिर कुदाल का हुआ है या फिर बीज और खाद का हुआ है, तो ये पैसे नहीं देते थे, ये क्या करते थे कि सामान के बदले सामान देते थे। इसका एडवांटेज क्या था कि उसका एडवांटेज टू फोल्ड था। एक तो क्या होगा कि पैसा उनके हाथ में नहीं जाएगा तो इसका दुरुपयोग नहीं होगा। पहले दूसरी चीज, अगर वो सामान के बदले सामान दे देंगे तो जहां कृषक का काम रुका हुआ है इमीडिएटली वो शुरू कर सकता था नेक्स्ट डे से। सो दिस वाज द बिगेस्ट एडवांटेज। पैसे क्यों नहीं देते तो उसका दो कारण था। एक तो पैसे देंगे तो एक जब किसान के पास जब क्राइसिस होती है तो वो पैसे को देखता, प्रायोरिटाइज करता है टास्क को कि अब इस पैसे को कहां उपयोग करें। एक्चुअली उसने पैसे मांगे हल के लिए, हल उसका खराब हो गया, लेकिन देखा कि उसने वही हल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे को कपड़ा बनवाना, उस पैसे को ट्रेन कर देता था कपड़े बनवाने के लिए। अल्टीमेटली क्या हुआ, उसका इकोनॉमी लॉस। फिर ये तो एक ये माइक्रो लेवल मैनेजमेंट था एम्प्लॉयमेंट के लिए, ताकि हमारा जो जो मैन पावर है जिसको युद्ध से चैनलाइज किया गया था एग्रीकल्चर की ओर, दे शुड बी प्रोडक्टिव एनफ। दूसरा इसमें एस्पेक्ट ये था कि डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए व्हाट दे हैव सेपरेट कॉर्पस एंड बेस्ड ऑन द पास्ट स्टैटिस्टिक्स दे यूज्ड टू प्रेडिक्ट, एंड प्रायर तैयारी होती थी कि भाई इस समय इतना नुकसान इन चीजों का होना है तो उसके लिए इतनी तैयारी रखते थे। भाई सेना अब जब एग्रीकल्चर में चली गई या फिर और रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक बेस में चली गई जहां पे हल का बनाने वाला भी कोई होगा, कुदाल कोई बनाने वाला कोई होगा, कपड़ा सिलने वाला भी कोई होगा, उनको भी इतनी तैयारी करा दी जाती थी कि यू बी रेडी विद दिस, एटलीस्ट उतना हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पे इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके एक जगह। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्सचेंज विद इन द सिस्टम शुरू हो गया, है ना। और बहुत ही सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल था। मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट, शिवाजी महाराज एज ए गवर्नमेंट क्या किया उन्होंने कि जहां पे जिन चीजों की मैक्रो लेवल पे जरूरत थी, मशीनरी का विकास कराना, तालाब को खुलवाना, बीज की व्यवस्था करना, खाद की व्यवस्था करना, ये सब का सब क्रॉस डेटा उनके पास हुआ करता था। तो एनालिटिक्स, सिंपल थिंग इज एनालिटिक्स वाज वेरी प्रोमिनेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उसको उन्होंने दिया आज भी इतिहास में स्वराज के नाम से, स्वराज नहीं स्वराज के नाम से, सुंदरराज। इस पे डीडी पे आजकल सीरीज भी आ रही है। अच्छा, डीडी नेशनल पे। Okay, I'm not aware of it, but I just went through the literature. From that, from there I explored the information. So this is the fact. तो सवाल ये उठता है कि being entrepreneur, you would be the crafter of the future. And how can you craft? Your thoughts should be diversified. So that's why you look how to start a startup. Your journey starts from this point. Right? You always plan for your future needs. ठीक है? Then you try to assess what is missing. क्या है मिसिंग को आइडेंटिफाई करने का तरीका? मिसिंग को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? दो चीजें, आपका ज्ञान और आपका ज्ञान उसकी एनालिसिस करने के लिए क्षमता, दो चीजें है ना। तो एनालिसिस किसकी करेंगे? तीसरी चीज आई डेटा, ठीक है ना। इन तीन चीजों पे अगर प्राइमरली फोकस करेंगे, then you would be able to take appropriate decision that what is missing, and this missing is basically converted into the idea. ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन ये उठता है, probably we are not
covering idea filtration. Just a second. Probably नहीं है. ठीक है. सही है? हाँ. So how can you filter your idea? Brief एक मिनट में बता देता हूँ. You simply assess the potential in terms of its economic return. ये हुआ करता था अभी सिचुएशन चेंज हुई है. सिचुएशन क्या चेंज हुई है? अब हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट की बात करने लगे हैं. तो अब इकोनॉमिक रिटर्न के साथ साथ हम ये देखते हैं कि सोशल वैल्यू कितनी इसमें है. प्लस तीसरी बात इसमें करने लगे हैं इन्वायरमेंटल वैल्यू कितनी इसमें है. तो इन्वायरमेंट नेचुरली ऑलवेज बी हेल्दी until and unless we are not going to disturb it, right? So what we have to look into that how this idea is going to transform into the form of product based on non-disturbance of the environment, social acceptance and economic return. तीन पर्सपेक्टिव से देखना बहुत जरूरी है. तो अभी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जो जैगरी बेस्ड फ्लेवर्ड प्रोडक्ट दे रहे हैं वहां तक अभी सभी इनका चैलेंज मेरे को समझ में आ रहा है कि आगे क्या सोच रहे हैं कि उसके सेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया ताकि एंड कस्टमर हमारा अगर यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ तो वहां पे इसको सप्लाई कर पाए. लेकिन इनके सामने चैलेंज ये कि उसके में बिना केमिकल इंग्रेडिएंट के उसकी सेल्फ लाइफ नहीं बढ़ाई जा सकती. Probably this would be the question, right? And he is stuck on that. So at this juncture, I would be suggesting, first of all, we try to capture the local market within the given frame of product life cycle or product shelf life. You try to cover the local market first. That's what I'm doing. That is what the only optimal way. It's not very new और हम कुछ नया नहीं सजेस्ट कर रहे. आप being entrepreneur, you must be knowing better than me on your particular product. But suggestive ये है कि उसको local ही capture करें, थोड़ी सी expansion करें. Even though you would be posing more money on the advertisement, but you won't be able to capture broader market due to this major concern of shelf life of the product. आप सबको पता चल गया डिमांड ग्वालियर में आप सप्लाई प्रोडक्शन कर रहे हैं महाराष्ट्र में मान लीजिए हमें दे नहीं पाएंगे आप. This is concern. So the next one is you simply try to list down all the ideas which have been generated from prospective future, looking at the prospective future, right? And then you please write down all those ideas, then try to evaluate on its economic value, social value and environmental value. Okay, then you would be able to identify that what can you do with that idea at what extent. Second step, अभी हम इस पे next पे प्रोटोटाइपिंग पे नहीं बढ़े हैं, हम अभी इसी पे डिस्कशन करना है कि उन जो आइडियाज में आप पोटेंशियल तो आपने देख लिया, अब आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आप उसमें से कर कितना पाएंगे और कितना जल्दी कर पाएंगे. ठीक है, और कितना आसानी से कर पाएंगे, कितना मैन पावर कंज्यूम होगा, कितना कॉस्ट आएगा और रिस्क कितना है, चीजें अवेलेबल होंगी कि नहीं होंगी, ये सारे के सारे पहलू. तो अगर इस एंगल से देखने की कोशिश करें कि एक आइडिया फाइनली शॉर्टलिस्ट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी. आपको सबसे पहले चाहिए पैसा. दूसरा उसको विजुअलाइज करने के लिए आपको चाहिए रिसोर्सेस. वो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस हो सकते हैं, इन हाउस रिसोर्सेस हो सकते हैं, बारोड हो सकते हैं, जिसपे आपका मिनिमम कॉस्ट है. ठीक है. तीसरा और इंपॉर्टेंट है कि आपका खुद का नॉलेज उस डोमेन में कितना है. अगर आउटराइटली आपने ऐसे आइडिया को पकड़ लिया जहां पे आपको ज्ञान नहीं है, बट you would be dependent on the others, then definitely be posing certain challenge in terms of time, risk, and आपके रिस्क ओवरऑल बढ़ा देगा ओवरऑल. ठीक है. then you will go for कि आपको अकेले हो पाएगा कि आपको टीम की जरूरत पड़ेगी, ये भी डिसाइड वहीं पे करना होगा. नेक्स्ट स्टेज में ये आएगा कि अगर आपने इसको बना दिया तो इसका बायर कौन कौन होगा और जो बायर होंगे वो पैसा कितना दे सकते हैं. ठीक है. एक स्टैटिस्टिक्स आपको और देना चाहता हूं कि नॉर्मली द कंपनीज व्हिच आर कंडक्टिंग रिगरस इनोवेशन, उस कंपनी में मोटी मोटा उनकी टोटल रेवेन्यू का करीब 30 से 35% पैसा के लिए आता है रिसर्च के लिए, जितनी भी इनोवेशन की. इसका मतलब कि प्रोडक्ट की जो नॉर्मल कॉम्पिटिटिव कॉस्ट होनी चाहिए उससे 40 से 50% ज्यादा कॉस्ट को बेचते हैं. इसका मतलब खरीदने वाले मार्केट में अवेलेबल है. इसका मतलब उसको प्रॉफिट अगर कमाता है तो चूंकि डिमांड हैवी है और उसमें लोगों की ऐसी जरूरत है जो कंपनी ए ही पूरा करती है, जो बनाती, जो स्पेशल प्रोडक्ट है वही पूरा करने वाला है, तो बायर कुछ भी देने को तैयार होते हैं. क्यों वो देने को तैयार होते हैं? क्योंकि उनकी दो जरूरतें होती हैं, या तो उनकी जरूरत लग्जरी होगी या तो उनकी नेसेसिटी इतनी खतरनाक होगी कि उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. दोनों ही चीजें. मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के केस में, वैक्सीन प्रोडक्शन के केस में सर्वाइवल क्वेश्चन है. ठीक है.
BMW, मर्सिडीज टाइप की गाड़ियां लोगों के कंफर्ट की लग्जरी है। रिसर्च के इक्विपमेंट्स हमारे नेसेसिटी रिसर्च का इनेबलर है, वो हमारी जरूरत है। तो ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में चलते हैं, क्योंकि वो इसका मतलब कि इसको जो बनाने वाला है उसको मार्केट डिमांड से परेशान नहीं होना है, उसको मार्केट डिमांड से परेशान नहीं होना है, क्योंकि कंजम्पशन होगा। सिंपल उसको क्या देखना है, राइट कस्टमर को टारगेट करना है। तो ऐसे कस्टमर को टारगेट करके अपनी उस आइडिया को जो आपने फिल्टर आउट यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है, यू ट्राई टू वैलिडेट दैट कि इज इट रियली हैज डिमांड in terms of its usability at any sustainable cost। ये डिसाइड करना जरूरी है। Once you filter out your idea, अभी तो आगे की बातें छोड़ दी, जो यहाँ पे मैन पावर की प्लानिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग है, और अरेंजमेंट ऑफ द आइडिया कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 किस आइडिया को पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये सब अभी छोड़ रहा फिलहाल। ये बेसिक मोटी बातें हैं। एक आइडिया को फिल्टर हो गया तो उस पर आगे बढ़ने की बात है। देन यू ट्राई टू डेवलप प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप किसी फॉर्म का हो सकता है, जैसे इन्होंने फूड की बात करी, तो फूड में पहला जो जेगरी का प्रोडक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लेवर एंड इट्स एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर। प्रोटोटाइप क्यों है? क्योंकि उससे कस्टमर जो आपके हैं एंड कस्टमर, उसको ज्यादा अच्छे से बात समझ में आ जाती है ना। इसलिए प्रोटोटाइप डेवलप करना जरूरी है। कोई मशीनरी है तो उसको लैब में आप बनाने की कोशिश करिए। मैकेनिकल डिजाइन है, मैकेनिकल डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब जिस भी डोमेन का जो एक्सपर्ट जिस चीज का नॉलेज रखता होगा, जो एंटरप्रेन्योर जिस पर्टिकुलर डोमेन का नॉलेज रखता होगा, उससे संबंधित पर्टिकुलर सेटअप को यूज करके एक उसका प्रोटोटाइप बनाए, ताकि कस्टमर को दिखाई दे कि क्या बन क्या रहा है। और इसके दिखाई देने का मतलब कौन कौन से फीचर कस्टमर के फायदे की है। अब मान लीजिए ये छोटा सा एक जॉयस्टिक है, इसका एक डिजाइन फाइनल किया गया होगा। ये टेक्निकली इट इज इनोवेशन, क्योंकि ये हाथ में सेट हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा और भी कम से कम 50 डिजाइन मार्केट में आते होंगे। हो सकता है कुछ इससे बहुत महंगे हो सकता है इससे काफी कुछ सस्ते हो। बीइंग ए कस्टमर हमने केवल इसको खरीदा, हमने और भी प्रोडक्ट देखे होंगे, हमने किस हिसाब से डिसाइड किया होगा कि जो कॉस्ट दे रहे हैं हमें वो फील मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 300 रुपए का सामान हमने प्रेफर किया, कोई 1500 रुपए का भी होगा, लेकिन उसका यूज नहीं हुआ, हमने उसको छोड़ दिया। हो सकता है 100 रुपए का सामान हो लेकिन उसकी लाइफ ना हो सकता है कंफर्ट ना हो यूज करने का, एंड नंबर ऑफ इश्यूज है। इसलिए प्रोटोटाइप बहुत जरूरी है कि प्रोटोटाइप बनाने पे चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि कस्टमर किस चीज की डिमांड करेगा। ठीक है। एंड बीइंग एंटरप्रेन्योर एंड आइडिया ओरिएंटेड, you should also be knowing, you must be having experiment with that which product or which design or which particular service would be suitable to the customer। आपकी भी कुछ एनालिसिस होती है, आपको अपनी थॉट को वैलिडेट करना है कस्टमर के फीडबैक से, है ना। कस्टमर के फीडबैक पे आप आइडिया बदल दिए, देन यू आर नॉट डिटरमिन्ड विद दिस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। ध्यान रखिएगा, आइडिया बार बार बदली नहीं आती। एक बात सोच के ढंग से शुरू से जब पढ़ते हैं तो बिल्कुल सारी एनालिसिस एक साथ करके बढ़ते हैं आगे, अदरवाइज रिपीटेटिवली आप आइडिया फिल्टर करने में आपका मैक्सिमम टाइम चला जाएगा, एंड आगे की एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप की जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाती, और वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, तब तक आपके हाथ से एज निकल जाता है। यस, दिस स्टेप आई जस्ट कवर्ड कि 100 पीपल कौन है, कस्टमर है। इटरेट ऑन द प्रोटोटाइप based on the feedback of the customer। Then it is again very important, find the co-founder। क्यों चाहिए? Why co-founder is required? Even though you are able to invest, you have proper backup of the money, you have proper backup of the resources, still क्यों चाहिए co-founder? Due to his knowledge। Yes, yes, any other input? हाँ बिल्कुल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में अगर 25 बातें हैं तो 25 बातों में से 25वीं बात होती है रिस्क। 24 बातें आपके कंट्रोल में होगी, 25वीं चीज आपके कंट्रोल में नहीं होगी, जिसको हम एक ब्रॉडली रिस्क के डोमेन में डाल देते हैं। ठीक है, तो रिस्क मिटिगेट करने का बेस्ट तरीका यह है कि यू हैव को-फाउंडर, है ना। Because you are experimenting with your fresh idea, and what would be the outcome? You can guess. Yes, इसके outcome बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन who will assess the failure? Suppose ऐसा हो गया 1% चांस हुआ, है ना। चंद्रयान 3 से पहले 2 आया, किसने उम्मीद लगाई होगी कि वहां पे जाके फेलियर हो जाएगा? 800 करोड़ का रिस्क कौन लेगा वो, है ना।
तो अभी तो मान लीजिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर पीछे नहीं बैठी होती, इसके पीछे कोई प्राइवेट पार्टी होती, तो चंद्रयान 2 को पहली बार भेजती क्या? पहला क्वेश्चन। दूसरा, प्राइवेट पार्टनर उस पर इतना इन्वेस्टमेंट करती क्या? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, क्या इतना उसको तैयार भी है चंद्रयान 2 तो भेज देती क्या? अगर ये काम आपको करना हो, आप कर देंगे क्या? 800 करोड़ रुपए आपको लोन उठाने हैं, लोन उठा के चंद्रयान 2 बनाना था, मान लीजिए, कर देते क्या? बात समझ में आ रही है? तो को फाउंडर होने से क्या हुआ? रिस्क कम से कम कुछ तो बटेगा, कुछ तो बटेगा, है ना? तो ये ये रिस्क मिटिगेशन की बेस्ट स्ट्रेटजी। अब सवाल ये है कि एक को फाउंडर रखें कि दो रखें कि 5 रखें, ये डिपेंड करता है उस स्टार्टअप, है ना, कि उसने क्या चुना है, किस दिशा में जाना है, कितना रिस्क है, कितना उसको मिटिगेट करने के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। एग्री? Even it means in all projects is always used to be innovative in general. I'm not talking about a traditional industrial project जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम और प्रोसेस बोल एस्टैब्लिश हो, केवल काम करा रहा है। No, I'm talking about the innovative project. All innovative projects have extreme risk, and definitely if it is lended by individuals, then better you try to divide that risk into the fragments, है ना, और हर स्टेप के को आइडेंटिफाई कर ले, ठीक है। और को फाउंडर क्या होगा? कम से कम फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, नंबर 1। दूसरा, उसका नॉलेज इस फील्ड में होगा, तब वो आपके साथ आएगा। तो दो तरीके का एडवांटेज मिलेगा आपको, एक तो आपको उसका ज्ञान मिलेगा, दूसरा उसका पैसा मिलेगा, तीसरा क्या मिलेगा? उसका एफर्ट मिलेगा, टाइम मिलेगा, यस, है ना। तो वो ये तीन चीजें उसको जो है आपको यहाँ पे कम से कम मिलेंगी, जिससे आपको फाउंडर आपकी जर्नी को और आसान बना देता है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है, बताता हूं, जो को फाउंडर करता है, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। कई डिसीजन ऐसे होते हैं अकेले एंटरप्रेन्योर नहीं ले सकता, या स्टक हो जाता है। वो होता है ना, सियामिक ट्विंस इशू आती है, जैसे ये करे कि ये करे, या करे तो क्या करे, क्या होगा इसका इम्पैक्ट। तो एक से पहले दो, उसका ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन आपके थॉट को मजबूती देता है, या फिर आपको डिसीजन लेने होता है कि इसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। सो दैट हेल्प्स बेसिकली गिवन बाय द को-फाउंडर, राइट। नेक्स्ट, रजिस्टर योर कॉर्पोरेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? हमेशा we used to run our incubation center over here, and especially we encouraged all the startups to get registered with the government as a legal entity. इसके पीछे कारण क्या है? सर एक तो कोई कॉपी नहीं कर सकता है। नहीं, कॉपी, कंपनी रजिस्ट्रेशन से कॉपी का क्या मतलब है? सर फॉर कैपिटल रेजिंग और टैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। दिस इज पॉजिटिव साइड। एक्चुअली जब बच्चा पैदा होता है तो हमें एक नाम देना पड़ता है उसको आइडेंटिटी के लिए। वो तो प्राइवेट उसे भी कर सकते हैं ना, पार्टनरशिप फर्म से भी। फॉर द ओनरशिप गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं उसको भी थोड़ा सा अवेयरनेस मिलेगा, आपके टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। वो भी एक इशू है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। वो भी भले चाहे आपकी इंडिविजुअल ही। चलिए मैं इसको दूसरा दिशा देता हूं। अगर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है और एक पार्टनरशिप फर्म है और एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, इसमें से अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आप 2 साल बिजनेस करने के बाद इसको क्लोज कर दें। पार्टनरशिप फर्म है तो थोड़ी होता है डिपेंडेंस आपकी पार्टनरशिप फर्म में बन जाएगी, भाई चलिए मेरा पार्टनर भी जब तक उसकी इच्छा तब तक इसको करते हैं, प्रॉफिट नहीं आए तो यू कैन एटलीस्ट थिंक अ टाइम कि चलो इसको बंद कर देते हैं। एक बार आप लीगल एंटिटी के तौर पे इमर्ज हो जाते हैं प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्म में, मतलब इट इज गवर्नमेंट कंट्री रिकॉग्निशन नाउ, एंड एट लीस्ट यू वुड बी वेरी क्लियर दैट मेरा भविष्य यही है, मेरा भविष्य यही है। जो प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म पेश आए हुए इस टेक्निक्स आपके दिमाग में नहीं आती है, और एक लीगल प्राइवेट लिमिटेड बनाने के बाद शायद आप ज्यादा स्ट्रिक्ट और ज्यादा क्लियर होते विजन से। सर मैं इससे एग्री नहीं करता हूं क्योंकि वो एक्सपेंशन के फॉर्मेट है। पहले मैंने शुरुआत किया इंडिविजुअल से, हाँ। मुझे ज्यादा एक्सपेंशन चाहिए, मैंने 4 लोगों को पार्टनर बनाया, मुझे और एक्सपेंशन चाहिए तो मैं प्राइवेट लिमिटेड में चला जाऊंगा, अपने रिस्क को और कम कर दूंगा। Exactly. और रिस्क कम करना है तो पब्लिक लिमिटेड में चला जाऊंगा। अब जो पैसा बर्बाद होगा शेयर होल्डर होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, तब भी मैं मौज लूंगा। रिस्क मिटिगेशन है ना, ऑलवेज इट इज एनकरेजिंग। बिल्कुल एग्री है, बिल्कुल एग्री है, लेकिन इसके कई डिटरमिनेंट्स है। उसमें ये भी एक डिटरमिनेंट है, दूसरा एक डिटरमिनेंट जो स्टार्टअप कभी बडिंग है ना, बडिंग से जब वो प्रोप्राइटर या होता है ना, आइडिया नर्चर करता है, प्रोटोटाइप बनाता है, प्रोटोटाइप को मार्केट में टेस्ट करता है, तो उसके दिमाग में एक सवाल कहीं आता है। अभी क्या होता है कि जो बडिंग एंटरप्रेन्योर है उसके पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू कोई नहीं है, तो उसका जो एंटिटी है ना, एंटिटी अभी जो लीगलाइज नहीं हुई है, उसी को अपना ब्रेड बटर मान के चलता है। लेकिन ये जो ब्रेड बटर वाला कंसेप्ट है एक समय जाके हिलता है जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। अगर आइडिया उसने ऐसा चुन लिया कि हमें एक्सपेरिमेंट करने में 2 साल लगेगा कि 5 साल लगेगा पता नहीं है, तो एक बार उसको क्विट करने की कोशिश करता है, जहां उसको एक लीगल एंटिटी बनाने के साथ उसको एक
अंदर से एक स्ट्रेंथ आती है कि नो, वो जब एकदम कंफर्म होता है कि नहीं अब आगे बढ़ेंगे, तो ये लीगल आइडेंटिटी देता है। अभी एक एग्जांपल देता हूं। जो दूसरा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है, जो आपने कहा वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पक्ष है कि हम टैक्सेशन में और लेवीज में, गवर्नमेंट स्कीम्स में, एमएसएमई की स्कीम में, एन नंबर ऑफ स्कीम, सब कुछ ज्यादा है। और सब कुछ मिलने के बाद भी एक पहलू ये भी इसमें ऐड ऑन आता है कि कहीं ना कहीं आपकी सोच को मजबूती देता है। सिंपल सबमिशन है, कहीं ना कहीं सबमिशन वो मजबूती देता है, क्योंकि आप बिल्कुल being outsider, suppose you are on evaluation table and these entrepreneurs are coming with the private limited firm and one is coming with the proprietorship firm. Definitely being a legal evaluator, you would be having a kind of feeling कि let us see the what is status of the mindset, bank balance, transaction, वो एक aspect सही है। कहीं ना कहीं उसकी दृढ़ता हम जब हम evaluate करते हैं तो इस बात को जरूर देखते हैं कि वो कितना दृढ़ है अपने विचारों पे। being evaluated एक इस पे एक स्कोप होता है ना। और उसमें नेक्स्ट आते हैं हम लोग लुकिंग फॉर फंडिंग एंड बिल्ड वर्जन व्हाट एट द सेम टाइम। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन टू डाइवर्सिफाई योर प्रोडक्ट एंड कैप्चरिंग डिफरेंट कस्टमर्स ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, डिफरेंट अलग अलग पे करने की कैपेसिटी वाले कस्टमर इसके अंदर कैप्चर किए जाते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी व्हीकल्स आती हैं जो एक हाई कॉस्ट पे मिलती हैं, मतलब हाई कॉस्ट इंडिया की उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को देखते हैं जो अभी 60% के आसपास गरीबी रेखा के आसपास कहीं जी रही हैं, बट उनकी भी सोच ऐसी होती है कि हमें 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए की कार ओन करें जो सस्ती मिल जाए, ठीक है। लेकिन अब कोई भी कस्टमर एक्स मान लीजिए किसी भी डोमेन से आता हो, उसकी जब वो शोरूम पे जाता है तो उसकी थॉट में वेरिएशंस आते हैं, है ना। थॉट में वेरिएशन क्या आते हैं, वहां पे जाता है कि वो बेस मॉडल लेते हैं 3 लाख का पड़ता है, 25,000 रुपए देते हैं तो उसका सेकंड बेहतर वेरिएंट मिलता है, उसमें थोड़ी ये फैसिलिटी और मिल जाएगी। जाते जाते वो एक्सपेरिमेंट करता है कि पूरी जितने भी वेरिएंट्स है एक बार सबको रिव्यू कर लेता है और वो कंपैरिजन करता है कि हम कितना पे करेंगे और कितना मिलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हर वेरिएंट बिकते हैं बाजार में ना। अगर डेटा को देखेंगे इन व्हीकल्स वालों, फोर व्हीलर जो सेडान सेगमेंट में क्या बोलते हैं हैचबैक सेगमेंट में छोटी गाड़ियां बाजार में बिकती हैं, सभी गाड़ियों बात है, ये एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, तो सभी गाड़ियां बिकती हैं। इसका मतलब कि बाय लॉन्चिंग वेरियस वर्जन्स द पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर वुड बी एबल टू गेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स। वो किसी को नाराज नहीं कर रहा है, किसी को होता है पता है कि पोटेंशियल देने के, तो कम से कम ले करके जाए अपनी क्षमता के हिसाब से। वो शोरूम तक आ गया, इसका मतलब 3 लाख पे करने की कैपेसिटी है। नाउ बेस्ड ऑन दिस वर्जनिंग he would be able to motivate the customer to pay higher, simple, है ना। और डेफिनेटली जहां पे एक बेस मॉडल लगता है वहां पे मान लीजिए 1 लाख आदमी खरीदने आते हैं, हो सकता है कि टॉप मॉडल खरीदने वाले 5,000 लोग हो सकता है उसके बीच वाले मॉडल को, दोनों के बीच में कोई बीच वाला तीसरा मॉडल भी हो, उसको खरीदने वाले 20,000 हो, तो उसने 25,000 का इजाफा कर लिया। 1 लाख तो देने वाले थे, लेकिन 25,000 का एड ऑन उसको मिला ड्यू टू दिस वर्जनिंग निकालना आसान है, क्योंकि वह एक बार आपका मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट तैयार है बाजार में, तो उसमें थोड़ी एड ऑन फीचर दे करके आप थोड़ी सी उसकी कमर्शियल वैल्यू हाइक कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि आपका मुख्य सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे हो चुका है प्रोटोटाइपिंग पे, है ना। अब इसको थोड़ी फीचर्स को एड ऑन करना है और ये प्रोटोटाइप के कई वर्जन्स निकाल सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्च। Is it really challenging? सर आप अपने से एक्सपीरियंस शेयर करिए। What kind of challenge you faced? मैं सर को भी संमिल हुआ, सर जो है वो बीजों का काम करते हैं। अरे आपके साथ नहीं है? नहीं। हाँ मतलब अभी तो हम लोग टीम में ही हैं, हम 25 लोग एक टीम में ही हैं। Very great। तो सर अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए इसमें। Launch। Initially it is very difficult whenever you are introducing any new product to convince especially the your retailer और द होलसेलर, उसको पहले कन्विंस करना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि अभी भी जो अप टू द कस्टमर पहुंचाने का डायरेक्ट तरीका जो ऑनलाइन सर के एक्सपीरियंस को ध्यान सुनिएगा, इसमें एक सवाल मेरा होगा, उसका जवाब आपको देना होगा। हाँ, ऑनलाइन तो है, लेकिन ऑनलाइन से भी पहले आपको जो लोकल मार्केट में जो आपका होलसेलर और रिटेलर है, जब तक आप उससे कन्विंस नहीं कर पाएंगे बहुत मुश्किल है आप अपने कस्टमर अपना माल पहुंचा पाए। ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है
कि जब आप अपने पहले कस्टमर को या पहले रिटेलर को मटेरियल बेचते हैं तो चैलेंजेस सर ने बताया। सवाल यह है कि बीइंग स्टार्टअप ये मार्केटिंग का काम कब से शुरू करना चाहिए? प्रोटोटाइप बनने के बाद, या फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद, या फिर आइडिया जनरेट होने के बाद? तो मार्केटिंग तो जिस दिन आइडिया आया तो उससे चालू हो जाता है। सवाल तो बड़ा सीधा सीधा आपने पूछा है कि कब शुरू करें। और हाँ। ये सेलिंग जब हमारा फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है हाँ। तब उसकी सेलिंग का टाइम आता है। ठीक है। मार्केटिंग हमारी शुरू से चालू हो जाती है, उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है, चेंजेस कर सकते हैं। ये सब। सर प्रोटोटाइप से हमें इसलिए कहते हैं कि प्रोटोटाइप और फिनिश के बीच में जो गैप्स हैं और जब इनिशियली हम लेंगे तो वो गैप्स फिल हो जाते हैं, तो फिनिश के टाइम पे आते आते होता गया वो गैप फुल होने के बाद आपका जो एक्सेप्टेबिलिटी है अमंग द होलसेलर एंड रिटेलर से वो ज्यादा बढ़ जाती है है। ना? प्रोटोटाइप के बाद सीधे अगर मैं ज्यादा लोगों को अप्रोच कर दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पॉइंट नोट करने का है, एक ओपिनियन है आइडिया के साथ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप देखिए यहाँ से जो है ना, ये 100 लोग कौन है? ये उसी कस्टमर में से है, लॉन्च पहले में सबसे पहले ये 100 खरीदेंगे, है ना? तो ये बिल्कुल जब अच्छा, इससे पहले भी एक स्टेप और होना चाहिए यहाँ पे, आइडिया के साथ साथ आइडिया के बारे में फीडबैक, लेकिन वहां पे एक डर होता है। डर क्या होता है? Sir, I think according to me, from the starting, Yes, starting is from where? from the scratch, Idea. Suppose I found the problem. I'm talking about the problem. I found a problem that electricity is a problem for me. We use coal for electricity. I post this on my Instagram wall. Then someone comment me that this is not the problem. Then if most people agree with me that this is not the problem. आइडिया फिल्ट्रेशन में नहीं आना, आपका आइडिया फाइनल हो चुका है, उस पे बात करिए। अच्छा, है already ना? final. आइडिया जहां से आप प्रोटोटाइप के लिए बनना चाहते हैं वहां से बात You करें। are asking me where you can start the market. मार्केट एग्जैक्टली, तो आपका आइडिया फाइनल हो गया, वहां से मार्केटिंग शुरू करें मार्केटिंग से चालू या प्रोटोटाइप से शुरू करें या फिनिश प्रोडक्ट से? सवाल ये है। तो एक मैं जो थोड़ी सी जो ग्लिचेस है मेरे दिमाग में, मैं अभी आपको बता देता हूँ। आइडिया which is basically having novelty, if you would be disclosing to any 100 such people who may be having financial potential but not be having skill, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह वो आइडिया लीक हुआ जहां से आप पता लगे एक्सपेरिमेंट करना है और किसी ने लंबा पैसा लगा करके आपसे पहले प्रोटोटाइप बना दिया, वहां पे एक रिस्क हो सकता है। ठीक है, और ये रिस्क इतना बड़ा है कि यहाँ तक का पूरा काम है ना, पूरा चौपट कर सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको तो पता है, आपको ये बहुत वाइजली डिसाइड करना पड़ेगा कि आप आइडिया किसी में मार्केटिंग करें या प्रोटोटाइप बना करके इसका पेटेंट फाइल करके, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करके तब मार्केट में उतरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोटोटाइप उस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे एक कंप्लीट सेशन है कि कैसे फाइल किया था, तो कभी बाद में डिस्कशन करेंगे हम लोग, है ना? लेकिन उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे आपके केस में है, आपने प्रोसेस इनोवेशन किया, अभी उसको आप पेटेंट करा लीजिए पहले। नहीं, मैंने उसको बात किया, अभी उस पे चल रहा है। सवाल ये हो गया कि अगर आपने ये डिस्क्लोज किया ऐसी कम्युनिटी को, कहीं आपने कॉन्फ्रेंस में इस आइडिया को प्रेजेंट किया। सर दो चीजें हैं, देखिए मैं थोड़ा दूसरी सोच का आदमी हूँ। मेरा कहना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारे यहाँ शुरू से वो चलता है। अब आजकल कमर्शियलाइजेशन में आपकी बात सही, लेकिन सुनिए, मैं इस वाले आइडिया में ज्यादा नहीं चाहता हूँ। मेरे पास एक और आइडिया, वो हर्बल पेस्टिसाइड का है, उसको लेके मैं आप वाले उस पे 100% आई एम एग्री। क्वेश्चन दूसरी है, दूसरा ये उठता है कि इफ लक्ष्मी जी रेडी टू कम, व्हाई विल यू लूज? सर कई बार मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए, मैं दूसरों के भले में ही लक्ष्मी ढूंढता हूँ। आप समझिए, मैं दूसरी बात करने जा रहा हूँ। एक सोसाइटी के लिए है ना, अगर ये आइडिया मान लीजिए जो आपने काम किया उसको हमने पेटेंट कराया, तो आप तो किसी लायक अगले दिन नहीं बचे ना। आप समझिए, अगर आप किस पे क्लेम करूंगा इस हिंदुस्तान में, और मुकदमे लड़ते लड़ते 70 साल लग जाएगा, बुढ़े हो जाओगे, कुछ भी नहीं लिख पाओगे। ये लाइट सही है सर। ये हिंदुस्तान का मामला नहीं है, ये जब ग्लोबल जंतर पे जाएंगे ना। अब जैसे नीम, जियोग्राफिकल टैगिंग एक उसमें टॉपिक है, नीम, बासमती राइस, ये पेटेंट हमारे हाथ में नहीं बचा है। और ये इंटरनेशनल पेटेंट एजेंसी खुली हुई है ना, हमारी सोसाइटी भी, मतलब गवर्नमेंट वुड बी ऑन स्टेक अगर उसके कंट्री में इसको यूज किया तो। आप समझ रहे हैं? इवन मुरैना के गजक भी सर पेटेंट एग्जैक्टली, की है। मुरैना का गजक, क्लस्टर बना है और किसी ने पेटेंट करा दिया। इलाहाबाद का अमरूद, हर जगह पे है। और आपका हींग, आपका ये हाथरस का है ना, कई जगह की जियोग्राफिकल टैगिंग है। तो क्यों आपको अगर सोसाइटी बेनिफिट करना तो पेटेंट कराकर सोसाइटी को फ्री कर दीजिए ना।
ताकि आपसे मतलब होता ना आप मिसयूज कोई ना करे तो उसका। हर्बल वाले को मैं ऐसे ही करूँ जो आप बोल रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना। पिक्चर इज वेरी क्लियर, वॉट एवर थॉट यू शुड बी हैविंग ए वेरी ब्रॉडर थॉट कि अल्टीमेटली कंट्री शुड नॉट बी ऑन स्टेक, योर सोसाइटी शुड नॉट बी ऑन स्टेक, यू एज एंटरप्रेन्योर शुड नॉट बी ऑन स्टेक। इसलिए अगर आपको लगता है कि वायबिलिटी ऑफ द पोटेंशियल इन द आइडिया इज एग्जिस्टिंग and there is viability of the product is existing based on the customer demand, definitely you should go। और बहुत कॉस्टली अफेयर नहीं है एक पेटेंट को फाइल करके उसको पब्लिश कराना ऑफिशियली 2 से 2.5 हज़ार खर्चा ऑफिशियली। बाकी पेटेंट लॉयर क्या लेते हैं वो एक अलग नेगोशिएशन है ना, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे इतने में कर सकते हैं, है ना। तो वो बाद में कभी चल जाएगा, लेकिन आइडिया अब ये डिसीजन ये लेना है कि वेदर यू शुड स्टार्ट मार्केटिंग फ्रॉम दी final filtered idea or from the prototype onward or after completing the developing the finished product, right? Then you look at the follow up. Once your product is launched in the market, then you get follow up and feedback, because ultimately जब आपका प्रोडक्ट बाजार में आता है बहुत अच्छा होता है तो word of mouth kind of advertisement or use of any other social media platform to popularize your product would be quite easy. Means reaching up to the end customer is quite easy now due to the intervention of the technology, but getting feedback and having consistent touch to get feedback on the performance of the product is really very important. This will help you to either bring new product or to refine your product or versioning your product or services whatsoever, right? Then based on the feedback, you again, if there would be major changes required, then you have to take 2 decisions. Either you continue this journey or you have to reiterate your whole process, either from the prototype or from the idea. और इस ये आइडिया पे फिर से आने का मतलब कि आपका इधर का एक्सपेरिमेंट पूरा ढंग से सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर यहाँ तक का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है इसका मतलब आपको यहाँ से इटरेशन शुरू करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि किस जगह पे आपका जो फीडबैक है स्टक हुआ है और कहाँ पे कस्टमर is not ready to buy. Our customer is providing a certain feedback based on the expectation, they are not getting the satisfaction quality measures, है ना। So this is simply about the startup journey. Now I'm coming to the basic concept that this suppose that there are 2 types, कैसे आइडिया, किस आइडिया को हम ले, और being a startup which idea you are going to take up, right? So there is 2 options. One is the concept, the idea, which is basically demand pull, market pull, or the another idea, which is basically technology push, smartphone launching. क्या ये दोनों कंसेप्ट एक ही प्रोडक्ट के लॉन्चिंग में हो सकता है क्या? इसका पिक्चर क्लियर है ना, ये पिक्चर क्लियर है। आपका जो आइडिया है वो इस कैटेगरी में आएगा एज पर माई कैलकुलेशन, ठीक है। जो ये लॉन्चिंग ऑफ दी सेंसर बेस्ड सॉइल टेस्टिंग डिवाइस वो इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसी एक प्रोडक्ट के लिए ये दोनों वायबल हो सकते हैं क्या? Since you are a startup, you must be having understanding. कंसेप्ट क्लियर है ना, मार्केट पुल और टेक्नोलॉजी पुश। Technology push means you are developing something new and you are launching first time in the market and your customer is experiencing first time this kind of technology, ठीक है। And market pull का मतलब ये है जैसे प्रोसेस इनोवेशन, सर ने गुड़ चॉकलेट बनाई, चॉकलेट के बारे में सब लोग अवेयर है, लेकिन गुड़ की चॉकलेट हो सकती है ये नया, है ना। Both the things may be possible. Yes, sir. हाँ. Technology push means I have an idea, Hmm. then that is like tech oriented kind of a product, Hmm. and the thing market pull is nothing but demand I'm creating for the product. Correct me if I'm wrong. What I understand is that much only. So suppose if I launch one product and if it is totally good, and suppose it is happening mouth to mouth promotion, definitely for my product demand will increase. Absolutely. So tech push with market pull is possible. Only when we are. आपने स्टेटमेंट दिया, what he made the statement, tech push followed by market pull is possible. Absolutely correct. Yes, sir. But there would be a second category of product जहाँ पे केवल इसी से काम हो जाए, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है,
है ना। जैसे मोबाइल फोन जब फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ होगा, किसी ने सेंस नहीं किया होगा कि ऐसा हो सकता है, तो ये क्या रहा होगा, टेक्नोलॉजी पुश था, ठीक है। लेकिन जैसे उसके दूसरे वर्जन, तीसरे वर्जन, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने लगे, वो मार्केट पुल पे हो गया। Getting a point? It means theory is this: if there would be any radical change in the market, which customer had not any perception, customer have never tested that. In that situation, technology push kind of philosophy can work, and this takes lot of rigorous R&D intervention, experimentation, sensitizing the R&D community, sensitizing the elite community. Then you can go to sensitize the market, right? This comes under the technology push, right? Once it would be launched, then customer would be aware. Then later on, they would be waiting for both the things. टेक्नोलॉजी में क्या चेंज है, लाओ ले, क्या ये डिमांड अकाउंट मार्केट में बढ़िया चल रहा है, लाओ ले, दोनों तरह के कस्टमर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम अगर नया एकदम रेडिकल थॉट है जिसके बारे में कोई सेंस नहीं है, जैसे स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हुआ, मोबाइल फोन आया, अभी हम लोग बात करने लगे कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, जो जैसे बोलते हैं ना जनरेटर, या फिर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक मैकेनिकल एनर्जी को, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना, नॉर्मली मोटर, ये सब क्या है, ये सब उस समय के लिए टेक्नोलॉजी पुश वाले सामान थे। लेकिन बाद में उसमें रिफाइनमेंट होता गया, यानी अब इंक्रीमेंटल इनोवेशन पे आ गए, यानी रेडिकल इनोवेशन would always encourage technology push kind of market demand. But if the innovation is incremental in nature, धीरे धीरे उसमें विकास हो रहा है, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, कस्टमर्स को सेंस कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, यूज कर रहा है, तो क्या होगा, ये मार्केट पुल होगा। थोड़ी सी प्रोडक्ट में या टेक्नोलॉजी में चेंज करेंगे, कस्टमर लेने को तैयार हो जाएगा, ठीक है। और यही एक बिजनेस स्टार्टअप जो एक इनोवेटिव आइडिया है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो उसमें एक स्टार्टअप को प्लानिंग ऐसी ही करनी चाहिए कि एक ब्रॉडर थॉट को बाजार में ले आए, तो उस थॉट को कमर्शलाइज करे। जब कस्टमर फर्स्ट टाइम अवेयर हो जाएंगे तो उसमें एफर्ट ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है, रिसोर्सेज ज्यादा लगते हैं, रिस्क भी ज्यादा होता है। लेकिन पेटेंट के थ्रू अपनी आईपीआर को उसने प्रोटेक्ट कर लिया है, तो फिर बाद में एक बार लॉन्चिंग में एफर्ट लगता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे पैसा वो ताउम्र कमाता है, ये उसका एडवांटेज है ना। तो इसमें पैसे की कमाई अच्छी होती है, रिस्क पहुंच जाते हैं। केवल प्योर इसमें क्या है, थोड़े रिस्क है, थोड़े और उसी हिसाब से रिटर्न मिलता जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ के लिए शुरुआत यहीं से होती है। अगर कोई एक बिल्कुल ग्रासरूट आइडिया है जिसमें नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात है, तो उसके साथ उसकी थॉट यही शुरू होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, द मोमेंट इन्वेंटर और इनोवेटर और द स्टार्टअप who has invented something on this particular part and running in the crunch of finance, तो उसमें कॉपी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। टेक्नोलॉजी के जो रिवर्स इंजीनियरिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना। तो ऐसे केस में क्या इसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आज से 10 से 15 साल का भविष्य को एस्टिमेट कर ले, ठीक है, कि पहले जो कोर टेक्नोलॉजी है उसको पेटेंट में क्या चाहिए, उसके फीचर के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी वो पेटेंट करा ले, उसके बाद आगे 10 साल तक क्या क्या उसमें अपग्रेडेशन दे सकता है वो करा ले, फिर मार्केट में आए, ताकि कॉम्पिटिटर कैन नॉट कॉपी दिस फिलॉसफी। होगा फर्स्ट लॉन्च में एफर्ट लगेगा, बाकी डिफरेंट वर्जन्स उसके मार्केट पुल टेक्नोलॉजी पुश इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ चलता रहेगा, ठीक है। क्या हम लोग ये बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी पुश इज द काइंड ऑफ B2C कॉन्सेप्ट एंड मार्केट पुल इज C2B कॉन्सेप्ट? डिफरेंट फिलॉसफी उसके पीछे। से फॉर एग्जांपल एक लैंडर बना चंद्रयान के लिए, एब्सोल्युटली न्यू ड्रास्टिक टेक्नोलॉजी है लैंडर के लिए, वही फेल हुआ था ना पिछली बार, तो वो उसका कस्टमर एक ही है ना। तो C2C B2B ये बात की फिलॉसफी है, ये सब चलता है कि मेरा मार्केट कॉम्पिटिटिव हो जाए। There is 3 economic market: oligopolistic, monopolistic and competitive. So this kind of philosophy works in the competitive market, C2B, B2C, and whenever anything is driven by the technology, they always play in the monopolistic market. Later on, after looking at this, some more player may emerge in the market, then the market will be oligopolistic. And if it would be copied by other different players, then the market would be competitive, right? So this philosophy works in the competitive market, right? So if things is happening in the technology push, it is absolutely monopolistic market. तो monopolist market create करने का तरीका है कि आप अपने IPR को प्रोटेक्ट करके रखें, अपने भविष्य को देख ले और सिस्टमैटिकली जितनी पॉसिबिलिटी है सारी पॉसिबिलिटी पे आप पेटेंट फाइल कर दें,
ठीक है, लगता है थोड़ा सा पैसा सिग्निफिकेंट आएगा, ये भी डिसाइड करना है कि नेशनल फाइन करेंगे इंटरनेशनल फाइन करेंगे, बात की बात है वो हर स्टार्टअप अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी और मार्केट के हिसाब से देखे और भविष्य को देखे, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सारा एक्सपेरिमेंटेशन इसके पहले कंप्लीट हो चुका होता है, अब केवल उसको प्रोटेक्ट करने की बातें हैं, तो वो क्यों पीछे हटेगा अगर भविष्य दिखाई देता उज्जवल, तो है ना। Now, look at this philosophy. Technology power zone and market opportunity, how it emerges. Look at the company technology power zone, technology extension, and new technological opportunity. Now, the market, existing market, emerging market, and new market. Based on this, and ultimately, startup यहाँ बैठा हुआ है, स्टार्टअप बैठा ऐसा बैठा हुआ, उसको ये भी जर्नी करके यहाँ पे पहुंचाया जा सकता है और ये भी जर्नी पूरा करके यहाँ पहुंचाया जा सकता है. Now, the startup who has started experimenting, जैसे सर का है, sir is basically trying to create a kind of monopolistic market and gradually trying to create monopolist market. मीन्स अपने आप को कॉम्पिटिटिव मार्केट से सेग्रीगेट करते करते ओलिगो तो मिलेगा ही नहीं बीच में, सीधे सीधे मोनोपोलिस्टिक की ओर अप्रोच कर रहा है, ठीक है. तो ऐसे केस में व्हाट ही इज डूइंग, ही मस्ट बी एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट प्रोसेसेस, है ना, ही मस्ट बी एक्सपेरिमेंटिंग विद द डिफरेंट प्रोसेसेस. दो एक है ना. दूसरा तरीका ये है कि जब सामान बन जाएगा तो हो सकता है कि वो इस वाले मार्केट पे अप्रोच करे, ठीक है. बेस्ट तरीका क्या है कि एक आप ऐसे चलिए ऐसे चलिए ऐसे चलिए ऐसे चलिए, या फिर आप ऐसे चलिए ऐसे चलिए ऐसे चलिए ऐसे चलिए. Straight away you can't follow, a startup cannot follow either this path or this path, right? I would say the best path is this combination of both, but in both the situation the startup has to face lot of resistance, क्योंकि अपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की अलग कॉस्ट है, मार्केटिंग की अपनी अलग कॉस्ट है ना. Now again startup has to take appropriate decision at appropriate time. ठीक है. Look at role of the information science in this startup journey. It is humble request to all the startups. Since this information science is basically trying to accommodate whole words and all in very beginning of this discussion, I pose my concern about the analytics. So you need data all the time. Then definitely you have to use a sensitive platform where by using which you can capture data or you can transmit data. Then the use of information technology usually comes into the picture. Why it is? It gives inertia. It supplies modularity to your thought. It basically has no limit. It is up to you that how much you want it, but information is coming to you permanently. Significant information you can filter out and you can use that, right? And finally, it gives a scope to you that how to devise certain principle to accommodate data, to analyze the data, and to reciprocate to the concern of the product development, technology development, market expansion, customer management, etc. Whatever you wish, right? And accordingly, you devise your own law under the given purview of the government law, right? ये अब सवाल ये मान लीजिए, एक समस्या सुनने में आई थी कि भाई जितने चाइनीज फोन इंडिया में आ रहे हैं सब में कोई कोई ऐसा ऐप है कि वो इंडिया का डेटा हैक करता है. सबको सुनने में आया होगा और एट सम एक्सटेंट इट इज ट्रू. तो अभी क्या है, ऐसे समय में क्रॉस नेशन बॉर्डर एक हमारी ऐसी प्रिंसिपल गवर्नमेंट के लेवल पे होगी या बन गई है, बेसिकली पॉलिसी इज इन कंप्लायंस नाउ, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट. कि क्रॉस नेशनल बॉर्डर डेटा ट्रांसमिशन के लिए पॉलिसी बनाई कि आपको उधर से आ ही नहीं सकते आप. तो वो फोन धीरे धीरे क्या हो गया, तो फोन बेचना बंद कर देंगे या तो फोन में ऐसे फीचर डालेंगे तो डेटा स्टीलिंग ना कर पाए. तो ये ग्लोबल लॉ है. नाउ इस ग्लोबल लॉ का जैसे इंडिया ने एक लॉ बनाया तो इसका इंपैक्ट कहां पड़ा, चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, है ना. उसमें कई जब नए स्टार्टअप आएंगे फिलॉसफी को ध्यान में रखेंगे. नाउ इफ दे वुड फॉलो द सेम फिलॉसफी ऑफ data filtration or data infiltration, then they will look at the country where this kind of law is not existing, right? But they cannot touch to India at least. Getting a point? So this comes the चार पांच जो फिलॉसफी है बड़ा इंपॉर्टेंट है ना. इसलिए इंफॉर्मेशन साइंस को स्टार्टअप की जर्नी में यूज करने के लिए. सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब वो कोई अपने फोन में ऐसा ऐप डाल रहे जिससे आपका डाटा चोरी हो रहा है,
तो हमारा यहाँ का जो यूथ है, जो हमारे यहाँ के आईटी एक्सपर्ट्स हैं, वो तो वर्ल्ड लेवल के माने जाते हैं। हाँ जी। तो गवर्नमेंट को कोई ऐसा बना के क्यों नहीं देते? लॉ तो अपना काम करेगा, हाँ। वो लेटर काम है, बहुत स्लो है हिसाब से। तो आप लोग ऐसा कोई ऐप क्यों नहीं डेवलप करते जो गवर्नमेंट कहे कि नहीं, फोन बेचने से पहले इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अब वो उसका एंटीडोट का काम करे? कारण बताता हूँ। दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। अगर ये फिलॉसफी बिल्कुल सही होती, यहाँ पे क्या है, बुद्धि का वार हो रहा है, ठीक है। इस बौद्धिक वार में, बौद्धिक जंग में क्या हो रहा है कि हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युद्ध में कि हम बेस्ट सोल्यूशन निकालते हैं, उसका काट निकालते हैं, हम बेस्ट सोल्यूशन बनाते हैं, उसका काट निकालते हैं, हम बेस्ट सोल्यूशन बनाते हैं तो काट निकालते हैं। अब सवाल ये होता है कि पाकिस्तान से इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन, इनका जो हो रहा है ना, क्या बोलते हैं, मिलिटेंट्स, क्यों हो रहा है? एक तरीका ये बॉर्डर सील कर दे, लेकिन नीचे से खोद के बना रहा रास्ता ना, ड्रोन से चीज आ रही है ना, आर्मी लगी हुई है हमारी ना। ये अब कॉम्पिटिटिव एज पे चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एज में बुद्धि से बुद्धि की वार है, इस पर एक्शन चीज बाद में आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि इस ऐसी चीजों को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने, जो सर्वर से डेटा भाई यहाँ से हवा में तो उड़ के जाएगी नहीं इन्फॉर्मेशन, किसी की सिक्योरिटी मिल गई, अब वो करे कुछ भी। तो ये स्ट्रिंजेंट ऐप, जब हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं तो उसमें 3 लेयर्स हैं, फिजिकल लेयर्स हैं, मिडिल लेयर्स हैं, सिस्टम लेयर्स है, फिर एप्लीकेशन लेयर है। जो हमारा ऐप जैसी सिस्टम आती है, जो ऐप जो हम लोग यूज करते हैं, वो एप्लीकेशन लेयर पे, बाकी 2 लेयर तो अनसिक्योर्ड है ना। तो अभी जो इन्होंने लगाया वो फिजिकल लेयर पे चेक्स लगा दिया इस रूल को बढ़ा करके। अब मुश्किल है इनके लिए, अब उसमें भी उनके इंट्रूडर्स, उसमें भी काट निकालेंगे, उसमें रास्ता क्या है, लड़ाई वहां तक की है। इसलिए हमारे आम नागरिक इन जनरल सेफ है, उनका इंटरेस्ट वो नहीं है। उनका इंटरेस्ट क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, उसकी फाइल का डेटा चाहिए। उनका कंसर्न ये है ताकि व्हाट विल बी नेक्स्ट मूव इन नेक्स्ट 2 to 3 years, and it cannot happen at the startup to startup level. It is happening at the government level, and the startup of that particular country is basically helping to the government to get this kind of information. ये मेरे स्टार्टअप नहीं, मैं तो आप जैसे इंटेलेक्चुअल से बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल। मैंने रेनाउंड जी, जी, जी। प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहे हैं। हाँ, और आपके पास एक अच्छे इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स आते हैं एज ए स्टूडेंट। जी है, काम शुरू है इस पे ये, लेकिन ये युद्ध चल रहा है। सिंपल सबमिशन कह रहा हूँ कि हर स्टेप का काट निकलता जाएगा, लेकिन लड़ाई चलती रहेगी। हाँ, वो तो ये कंटिन्यूअस वॉर है, फॉरएवर है, कंटिन्यूअस वॉर है, इंफॉर्मेशन वॉर है ना ये, है ना। तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, हमें अपने लेवल पे अवेयर होने की जरूरत है। अभी जो कम से कम जो हम यूज कर रहे हैं उसमें इन चीजों का ध्यान रखें एज एन स्टार्टअप, ताकि एक इंफॉर्मेशन का बेस्ट यूज किया जा सके, राइट। Now look, it is general innovation process. Your journey start from market and end to this market. आइडिया का सोर्स यही है, यहाँ से काम शुरू होता है, काम शुरू होता है, काम शुरू होता है, इनोवेशन पे आते हैं, फिर अल्टीमेटली मार्केट को सप्लाई देते हैं फाइनली, फिर उसमें फीडबैक मिलता है, अगेन यू विल स्टार्ट। यही से कुछ आइडिया रेडिकल निकलती है, यही से आइडिया कुछ इंक्रीमेंटल निकलती है। नाउ इट इज योर सिलेक्शन, राइट। हाँ, ये देखिए इंटरेस्टिंग है, टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग मेथड इज सिंपल, एक बहुत ही लेमन भाषा में डिजाइन है पीपीटी। स्कैनिंग फॉर द आइडिया, रोड मैपिंग ऑफ द आइडिया, ट्रेंड एनालिसिस, एडवांस टेक्निक, एक्सपर्ट जजमेंट। ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, किस चीज के लिए कर रहा है, प्रेजेंट, मिड रेंज, लॉन्ग टर्म, इनको ध्यान में रख करके। इसके लिए क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। जनरल इंफॉर्मेशन आती है, बहुत ही क्वालिटेटिव होता है इंफॉर्मेशन, और मतलब बहुत एब्जॉर्ड होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन आपके पास कुछ होती है ना, इंफॉर्मेशन कुछ होती है, लेकिन आप उसको हम क्वालिटेटिव कैटेगरी में रख लेते हैं। जब आप इसको तोड़ते जाते हैं, फिल्टर करते जाते हैं, तो टूटते टूटते क्वालिटेटिव रेंज में होता है, क्वांटिटेटिव होता जाता है, बहुत ही स्पेसिफिक होता जाता है, ऑब्जेक्टिव बहुत डिफाइंड हो जाता है, और वो ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे पीस में होता है, और आपको रैंकिंग करने में, प्रायोरिटाइज करने में, उसको रिलेट करने में, उसको कौन सा बाजार में लेके आना, सब कुछ डिसीजन लेने में ये मदद करता है। और ये विजन प्रेजेंट से लेकर के लॉन्ग टर्म होता है। देन यू हैव टू फॉलो दीज जंक्चर्स टू गेट एप्रोप्रिएट डिसीजन ऑन दी टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग, कि हम किस चीज पे काम करें, ठीक है। और एक चीज, जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो उसमें इनोवेशन बहुत प्रोमिनेंट वर्ड है। इनोवेशन हमेशा एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि कैसे किसी चीज को एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक ट्रांसफॉर्म करके ले जाए, ठीक है। इनोवेशन समझते हैं, मतलब ये एक लेवल में बोले तो क्या होता है इनोवेशन। something is already available, but we are now using some technology or the other means to remodify it, having seen the customer's requirement or to customize that.
हाँ, हम इसको मैनेजमेंट की भाषा में बोल देते हैं, चेंजेस दैट ब्रिंग्स वैल्यू। सिंपल है ना, चेंजेस दैट ब्रिंग्स वैल्यू। ठीक है, वैल्यू कस्टमर के लिए होगा, वैल्यू होगा तो उसमें लोग प्राइस पे करेंगे उसका। और चेंजेस क्या होगा, तो चेंजेस ऐसा हो, चेंजेस की कॉस्ट वैल्यू है, जो परिवर्तन ला रहे हैं ना, बदलाव ला रहे हैं, उसी की वैल्यू, उसी की कॉस्ट पे करने वाला है। तो सिंपल भाषा में ये है। और जब टेक्नोलॉजिकल हम फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो इसमें यही देखते हैं कि ये जो होता है चेंजेस इन वैल्यू कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, आप यहां से यहां पे सीधे जंप कर देंगे, बीच को ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको वैल्यू काफी दिखाई देगा। यहां पे मिस्टेक करता है स्टार्टअप, उसको लगता है कि हम तो ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आज से 5 साल बाद मुझे खूब पैसा देगा। ठीक है, लेकिन उस वैल्यूज को अगर आपने क्वांटिफाई नहीं किया, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा कि बीच की अपॉर्चुनिटी तोड़ेंगे और भविष्य तो जाएगा ही जाएगा। ये मिस्टेक होती है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखने का है। बात समझ आ रही है? नींद तो नहीं आ रही ना, है ना? बात आगे चले या ये स्लाइड हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी कल होगा तो उसमें कवर करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। सेटिंग द कंटेक्स्ट फॉर व्हाट। अब हम आप बात करते हैं सीधे सीधे टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल की, जो भी इनोवेशन लेवल की बात कर रहे हैं ना, कैसे कैसे क्या करें। ठीक है, इसमें ये सारे के सारे नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो एक रिसर्चर के दिमाग में या एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आते हैं, हु इज बेसिकली ब्लेंडिंग हिज फ्यूचर ऑन द टेक्नोलॉजी जंक्शन, राइट? तो व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ द योर रिसर्च, व्हाट यू वांट टू डू, जिसके बेसिस पे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं आप, है ना? व्हाट इज द आउटकम एंड फ्यूचर ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, मींस आपकी आइडिया का भविष्य क्या है। ठीक है, विल एनीबॉडी यूज इट, क्या यूज करने के लोग हैं? अगर एक आदमी यूज करेगा तो ऐसे कई लोग यूज करने वाले मिलेंगे। तो इसका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये शुरू कहां से होता है? आपके घर में से शुरू हो जाता है। आधी आइडिया का फिल्ट्रेशन तो आप घर में कर सकते हैं, है ना? तो कभी कभी क्या है, घर में लोग बाहर हो जाते हैं तो आप थोड़ी मित्र से पूछ लीजिए, पड़ोसी से मिल लीजिए। कभी कोई आपको ऐसा मित्र मिलता होगा जो आपको क्रिटिकल रिव्यू देता हो, मतलब उसका तारीफ भी करता हो, वहां पे उसका दोष भी बताता हो। ऐसा मित्र खोज लीजिए, है ना? स्टार्टअप के लिए बड़ा फायदेमंद है ना? Can it be used for any other similar areas, other domains? More domains, more benefit. Single domain, single benefit, less benefit, right? So if your idea would be universal, then it would be accepted for different various domains, right? But associated challenge. If you are working on a general idea, then technically it would take more effort for its suitability to different domains. ये एक क्वेश्चन उठता है वहां पे, तो ये डिसाइड करने का बात है ना? इज योर रिसर्च इंडस्ट्री, वेदर योर रिसर्च इज इंडस्ट्री फ्रेंडली, और कैन वी टेक योर आइडिया टू इंडस्ट्री और एनी कंपनीज डायरेक्टली? ठीक है ना? ये अभी तक के ऊपर की पीपीटी में हमने कहीं नहीं कवर किया कि आप अपनी आइडिया को इंडस्ट्री से कैसे वैलिडेट करें, या पर्टिकुलर इंडस्ट्री वर्टिकल से कंपनी में कैसे वैलिडेट करें। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। क्या ये पेटेंट आईपीआर के एंगल से सुटेबल है कि नहीं, ये पॉइंट जरा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, है ना? ये इंपॉर्टेंट कि आपका आइडिया जो है वो कंपनी या पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सुटेबल है कि नहीं है, ये उनसे डिस्कस करें कि नहीं करें। क्या ओपिनियन है इस पे? सर डिस्कशन तो करना पड़ेगा, बिल्कुल क्योंकि करना जैसे पड़ेगा। मैंने हर्बल पेस्टिसाइड को लेके आईपीआर को लेके बात किया, हाँ। तो एक्चुअली क्या है, वो भी रॉ फॉर्मेट में है। हाँ। तो मैंने जब दिल्ली बात किया तो उसने मेरे को बोला कि रॉ फॉर्मेट में हम नहीं करते हैं, या तो आप किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उसको वेरीफाई करा के लाओ। और उसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं वहां पे किसी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के पास जाऊंगा, मैं तो कॉमर्स का आदमी हूँ, तो वो 99% मुझसे बोलेगा ये यूजलेस है, कुछ समय बाद उसको चेंज करके वो मॉडिफाई करके उसको वो करा देगा। बिल्कुल। और या वो कहते हैं कि भाई आप किसी लैब में जाइए, लैब में वो कंटेंट निकाल के लाइए, जो कंटेंट इस बेसिकली इफेक्टिव है, तब हम इसको पेटेंट करेंगे। अब वो कॉस्टली है। फिर मैंने एक लैब से बात किया, बोलता 5 लाख रुपए चाहिए, तो भाई मेरे पास 5 लाख रुपए थोड़ी कि मैं उसका कंटेंट निकाल के लाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन डिस्कशन करने से ये होगा कि मुझे आगे हर्डल्स पता चले, तो जैसे ही मेरे पास टाइम होगा उन हर्डल्स में से मैं कोई वे आउट निकालूंगा। डेफिनेटली कुछ तो इनपुट आया। हाँ। कुछ तो इनपुट आया, मतलब अभी क्या है कि सीधे एक्सपेरिमेंट करते आप तो उसका आउटकम कुछ भी हो सकता है ना? पता है कि आप अपने धुन में आप अपना काम किए आ रहे हैं, होता है आदमी थोड़ा इन्वॉल्व हो जाता है, तो इस इन्वॉल्वमेंट से आप तो काम करते आ रहे हैं, लेकिन पता है कि राजा को पता नहीं और बहली ने बन बांट लिया, ऐसा हो जाता है ना? आपको पता नहीं आप इनोवेटर है उसके, लेकिन आपके पीछे उसकी आपकी आइडिया कई लोगों ने कमर्शलाइज कर दिया। एक्चुअल इन्वेंटर आप रहे। तो इसलिए
डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपने उनसे क्या डिस्कशन किया जो आप ही की कम्युनिटी के हैं, रिसर्च कम्युनिटी। स्टार्टअप की जो इनोवेटिव आइडिया हो रिसर्च कम्युनिटी मान लेते हैं उसको। ये डिस्कशन वहां करना है जो इसको यूज करेगा, इंडस्ट्री या फिर कंपनी। आपको वो भी पार्ट देखना है, जैसे आपके रिटेलर्स आपके केस में वो आपके राइट स्टेक होल्डर्स है। बाकी चैलेंजेस आप मिटिगेट कर सकते हैं, वो कहां पे रुकते हो दैट इज योर डिसीजन, राइट। लेकिन ये डिस्कशन आपको जो इसको लेने वाले हैं ना उनसे करना जरूरी है, क्योंकि द प्रोडक्ट or the technology which you as a customer, you as an inventor wanted to launch in the market, either you target your customer or you target your this particular segment of company. जैसा इन्होंने बोला ना C to B, मतलब कि टेक्नोलॉजी टू B जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी टू C जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी कस्टमर को देना है, टेक्नोलॉजी बिजनेस को देना है, ठीक है। तो C वाला पोर्शन तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी B वाला पोर्शन इसमें है, इसमें डिस्कशन का विषय बनता है। क्यों ये चाहिए? क्योंकि आपको यहाँ से बल्क ऑर्डर मिलना है, आपके कंज्यूमर आपको कंजम्पशन के लिए आपको पैसे यहाँ रेवेन्यू जनरेट करना आसान है ना। तो आपका कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन ना, आइदर इन द प्रोडक्ट और सर्विस, इन द फॉर्म ऑफ सर्विस, कंपनी लेगी तो अच्छा पैसा देगी, है ना, क्योंकि ये जाकर के अपने रिटेलर्स को लेके जाएगी, ठीक है। When is the right time to think of building a venture from your idea? Appropriate question. कब ये डिसाइड करेंगे? प्रोटोटाइप बनने के बाद, आइडिया स्टेज में, या फिर फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद? सोल्यूशन यहाँ पे देते चलते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कॉमर्शलाइजेशन, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है, कि कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। दो तरीके हैं। कभी कभी क्या होता है कि आइडिया को हमने वायबिलिटी टेस्ट कर लिया, उसकी प्रोटोटाइप बना ली, ठीक। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो उस प्रोटोटाइप को पहले पेटेंट से प्रोटेक्ट कर लीजिए, या तो उस प्रोटोटाइप को आप मार्केट में प्रोडक्ट फॉर्म में ले आइए। दूसरा तरीका क्या है? बहुत चल रहा है समय, आप अपनी कंपनी को या अपने उस कॉमर्शियल आइडिया को या पेटेंट के साथ आप बेच दीजिए। दोनों रास्ते आपके पास है, ठीक है। यही गोल है। इसमें फिर एक चैलेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कॉमर्शियलाइजेशन का। दूसरा वाला रास्ता तो रिटेलिंग वाला तो आसान है, जो आप किसी से वेंचरिंग कर रहे हैं या किसी कंपनी, जैसे में क्वेश्चन था ना ये, कि इंडस्ट्री से या कंपनी से बात करें, तो इस इंडस्ट्री और कंपनी से बात करने के बाद भी दो रास्ते खुलेंगे आपको। या तो उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए कुछ दाम पे, इसका डील करिए आप, या फिर उसको आप सोल्यूशन दीजिए जो कंसिस्टेंट लंबे समय तक चलने वाला काम आप प्रोडक्ट बनाते रहिए, है ना। सेम विल हैपन एंड अल्टीमेटली the industry or company particularly would be the technology buyer, ठीक है ना। तो now you have again being a startup you have to take decision on that particular point, ठीक है। Now again how to evaluate your research, basically your particular experiment which you have decided, ठीक है। When a research solution is ready to help us to solve a particular challenge, ये पहला क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है कि when a research is appropriate for commercialization। एक तो ये है कि पर्टिकुलर चैलेंज को सॉल्व करने के लिए आपने प्रोटोटाइप बना लिया, प्रोटोटाइप के बाद आप कमर्शियलाइजेशन करना है कि नहीं करना है, अभी ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। फिर अगेन है कि what do end users or stakeholders think of adopting your particular product and solution or technology as well, right? इनका फीडबैक अगर सही आता है तो ये एक क्या है, सर्कुलर प्रोसेस है। ये एक सर्कुलर प्रोसेस है, यहाँ से चीजें यहाँ पे आती है, यहाँ से यहाँ पे आती है, या फिर वाइस वर्सा। आप देखिए पूरी जर्नी में दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा हु विल बी फर्स्ट एंड हु विल बी लास्ट, दूसरा, तीसरा योर ओन डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम डील फाइनल कर लेते हैं और डील फाइनल करने बाद लगता है धोखा हो गया, और इन चीजों का कोई मैथमेटिकल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है, एंड दैट इंफॉर्मेशन कैन बी टर्न इनटू योर थॉट प्रोसेस। तो आप अपनी टीम से डिस्कस करें,
सोचने के बाद यू डिसाइड इसको क्या करना है नेक्स्ट, है ना, ये बहुत जरूरी है ब्रेनस्टॉर्मिंग. What do end you okay? When should it go from the lab to the field testing? Field testing important इसलिए है कि feedback चाहिए आपको. Again, it is linked with above three, है ना? When it is ready for full implementation. Other than the information technology, where this implementation time is very critical. बाकी सभी जगह पे सारे के सारे टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही डिस्क्रीट इन नेचर है. आप जाएंगे, टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट किसी को देंगे या लगाएंगे और आप चले आएंगे, ठीक है, उस पर फीडबैक ले सकते हैं. लेकिन इसमें क्या होता है, आईटी फील्ड की किसी नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में आपके इम्प्लीमेंट करते नई चीज और आ जाती है ना. तो उसके लाइफ स्पैन को डिसाइड करना कि इम्प्लीमेंटेशन कितने समय में करना है, फीडबैक मिलने का टाइम है कि नहीं है, ताकि न्यू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करके नए पैसे कमाए जा सके, वो इसको थोड़ी सी इसमें बहुत क्रिटिकल होता है आईटी के केस में. और बाकी सभी फील्ड में सही है, इंक्लूडिंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एरोस्पेस एंड अदर स्ट्रीम्स एंड ऑल, इवन इन फूड टेक्नोलॉजी. फार्मास्यूटिकल में थोड़ा सा क्रिटिकल है, स्पेशली कब, जब क्रिटिकल डिजीज के लिए, और वो कैसी क्रिटिकल डिजीज जो पैंडेमिक टाइप की है ना, या एपिडेमिक टाइप की चीज है ना, वहां पे भी बड़ी क्रिटिकल होती है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज कौन लेके जाएगा, है ना. Now look at, to solve all this question, we basically focus on this technological readiness level, right? I'm straight away coming to my that particular slide. Time है कि Yes, sir. only, ठीक है, 10-15 मिनट. So just to assess all these things, we have to focus on these systematic steps coming from basic 1 to 9. ये important है, इसको देख लीजिए आप अपनी स्टार्टअप टेक्नोलॉजी जर्नी में इसको यूज कर सकते हैं. First one is your experimentation with the idea. Second one is development of optimal solution with the prototype, and third one is deployment of the solution in the market. And these basically three dimensions are categorized, are basically segregated into in 9 stages. All they are very 9 stages. Every stage requires certain time, certain resources, certain impact. As a startup, or basically researcher as well, right? So basic principle is basically observation. You observe that whether what are the possible problems are there, what are the possible ideas for the entrepreneurship. You try to evaluate the particular idea. Then you come to the टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट फॉर्मुलेशन, ये उस आइडिया को वायरल बनाने के लिए किस तरह की और कैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, ठीक है. देन यू कैन एक्सपेरिमेंट विद द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट. जो आपकी टेक्नोलॉजी आपने सोच लिया कि भाई इस पे बनना है, तो आप उसको एक लेबोरेटरी टेस्ट दीजिए, उसको बनाइए. बनाने के बाद उसके जितने भी तैयारी आपकी इस आइडिया के फॉर्म में थे, जितने भी फीचर्स आपने प्लान किए थे, वो सारे के सारे इसमें आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है. वो सब कुछ अपनी आइडिया से आप अपने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को मेजर कर सकते हैं, राइट. Once it would be researched, then your second step is look at, this is very comprehensive and critical. आप देखो जितना भी आपने स्टार्टअप जर्नी के लिए कंसेप्ट लिया है, जितनी भी गवर्नमेंट के सपोर्ट्स मिलते हैं, फंडिंग मिलती है, सीड ग्रांट्स मिलते हैं, वो सब के सब किस लिए, केवल इसके लिए, है ना. बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी इसी के अंदर आती है, उनको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. मैक्सिमम वेंचर यहीं पे फेल हो जाते हैं, है ना. डेवलपमेंट के बाद ये आगे तक जाने की क्षमता नहीं होती है, फिर हौसला नहीं होता, ठीक है ना. इस हौसले को बुलंद करने के लिए एक तरीका है, आपको पैसा चाहिए, क्योंकि यहाँ तक आपको काफी कुछ कंसेप्ट हो गया. यहाँ पे आपको पैसा भी चाहिए और दूसरा एक क्या, मार्केट चैलेंज फेस करना है आपको. दो बातें हैं, है ना. और ऐसे सिचुएशन में आधे लोग यहीं से हार मानते हैं. अच्छा, ये एक और सिचुएशन है. इफ यू विल लुक एट द स्टार्टअप हिस्ट्री ऑफ द ग्लोब, द मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप वेर बिलोंगिंग ऑफ द यंग एज, and that young age belongs to basically 26 years to 35 years, right? Now if you are experimenting with an idea that take around 3 years during your graduation or post graduation, and you want to cultivate that your idea has been transformed into the concept or it transformed into the prototype, and
at that point of time you would be attaining the age of 30, 32 years, or let us say 35 years plus, right? Then you would be in dilemma that whether you should go for this blue level or not. Even if you are ready to go, then again you will face the problem of resource crunch in terms of financial support and market analysis, right? Even though you have some feedback during this particular thing, but this particular phase is very critical to analyze, right? You need a comprehensive feedback of the market from the customers and from the industry as well, right? And the moment you will throw your concept over here, इसको 3 से 4 लेवल आने से पहले आपको यहीं पे अपने आईपीआर को प्रोटेक्ट कर देना है, यहीं पे। ये गलती अगर कर गए तो आपका पूरा का पूरा मार्केट में एफर्ट कॉपी होने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे, एंड यू वुड बी ऑन द एज ऑफ द स्वॉर्ड, तलवार की धार पर रहेंगे हमेशा, है ना? क्योंकि इसके साथ आपने पूरा अपनी जिंदगी लगाया है, गोल्डन टाइम ऑफ द लाइफ, है ना? Then you look at the technology validation in the lab, because जो लैब में एक्सपेरिमेंट करने वाले आपके कलीग्स है, सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आप if you are playing with the technological development in the lab and you are deploying 1 or 2 or 3 person, there would be biggest risk to you, because they would be hired at higher cost to any competitor, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका कंसेप्ट, मतलब आपका जो रिस्क है वो मार्केट रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट सारा का सारा आइडिया, पैसा, रिवॉर्ड सब चला गया और लाइफ चली गई, ठीक है? You experiment with this technology validation in the lab, and then you can go for the technological validated in relevant environment. Say for example, what is this relevant environment for the technology? जब हम अभी बहुत ही prominent issue है इंडिया के साथ, कि we are usually trying to develop a kind of ecosystem in India to produce semiconductors and solar technology. दो ये बहुत prominent issue है, एक energy sustainability को ensure करता है, दूसरा टेक्नोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के बेस को इंश्योर करने की बात इस समय इंडिया में चल रही है, ठीक है? तो ऐसे केस में द चिप which you would be fabricating in the lab requires certain temperature, certain horizontal base, so that the chip precipitation on particular VLSI technique should be very clear and very stringent. बहुत एकदम साफ सुथरी बात है ना? तो वो क्या है, एक लैब का एनवायरनमेंट है, वो लैब का एनवायरनमेंट है जो 25 डिग्री सेल्सियस पे एक सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन पे एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ वो प्रोड्यूस हो गया। अब उसको निकाल के जब मार्केट में ले आते हैं, वहां का टेम्परेचर इंडिया में एटलीस्ट वो 4 डिग्री से लेकर के 48 डिग्री तक टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है? और ये अगर हमें सूरज के पास कोई सूर्ययान भेजना है तो वहां पे तो थाउजेंड्स ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर है, गेटिंग माय पॉइंट? उसको कैसे आप यहाँ पे लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे? तो उस एनवायरनमेंट को सिमुलेट करके ये लैब टेस्टिंग की बात करता है। जिस चीज के लिए आपका प्रोडक्ट जिस कंडीशन में चाहिए, उस कंडीशन को आप एक सिमुलेट करके लैब एनवायरनमेंट बनाइए, एंड देन यू टेस्ट। एक तो टेस्टिंग यहाँ पे हो जाएगी, देन थर्ड स्टेज टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड एट दिस पर्टिकुलर लेवल, कि आप जेन्युइनली रियल एनवायरनमेंट में ले आइए और वहां टेस्ट करिए इसको। 3-fold टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, एंड इन दिस once your product is pass through this 3 testing condition, then it is basically now developed, right? Now it is developed, now you can ready for the market, right? Then you start from system prototype demonstration in operational environment, जो आपके जिस environment real time environment है, then you can go to system complete and qualified for the market acceptance, then you can actually prove yourself as a successful product developer, and that comes under the 9th level. This methodology is basically come from NASA. अपनी टेक्नोलॉजिकल रेडनेस लेवल को नासा वाले इन स्केल्स में टेस्ट करते हैं हमेशा, ठीक है? तो ये R&D के लिए तो बेहतर है, ये स्टार्टअप पे भी उतना ही एप्लीकेबल है जो टेक्नोलॉजी लेड या फिर इनोवेशन लेड प्रोन है ना? So this is the systematic steps followed under different levels from 1 to 9. This is covering the TRL approach, that is considered a useful tool that gives you the general understanding of the technology status, risk assessment and management at every stages, and that the decision making, this gives a scope for the decision making with respect to the technology funding, where from or to whom you can fund it, right? Then you can think about the decision making with respect to the technology transfer should be developed by your own, and then you can again scale up the thought. Whatever you have developed, again you will get sufficient input on this particular. Once you will be reaching to
status 7, 8, and 9 of the technological readiness level, right? So these are the basic steps under each level that you have to follow. I will give this slide to you and you can refer it, right? ठीक है, क्लिक करना तो मैं बढ़ाता चलूँ एक एक। चलिए, है ना, इसको क्लिक कर लीजिए, ठीक है। इसको क्लिक कर लीजिए। ये तीन ऊपर की जो फर्स्ट रिसर्च कंडीशन है, ये बेसिकली समरी है, ठीक है। सो प्रोसीड। ये समझिए, इसको कर लीजिए बात। जो ऊपर के लेवल 4 से लेवल 6 तक के उसकी समझिए, ये इसकी समझिए, तीन स्टेज। इसके आगे एक चीज और आती है, once your technology is ready, when your manufacturing readiness level comes another term where you can transform your technology in the form of product, and finally it will take a scale production for the use of the customer or industry whatsoever. वो अभी इसमें covered नहीं है, तो वो एक different phenomenon है, and that is beyond the scope of the startup discussion right now, because mass scale production है, वो तो huge investment का हिस्सा है ना। So this is all about the technological readiness level. I'm sure that you would be getting benefit out of this discussion, right? This is a summarized flow of innovation. वापस करिए ना। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब स्टेप आपको थोड़ी सी मदद देगा, ठीक है। Other readiness level is not part of this, but it was just समय बचेगा दिन